Hi guys, my name is Huma Sarwa. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about University of Tuscia. Actually, it's an Italian word Tuscia. Tuscia तो हम लोग इसे तुषा पढ़ेंगे. अगर हम लोगों ने इसे लैटिन में पढ़ना है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा दैट वुड बी तुस्किया और इटालियन में तुषा. अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है एंड यू गेट द स्कॉलरशिप और यू गेट द इंटरव्यू कॉल, तो नेवर से यूनिवर्सिटी ऑफ तस्किया और तुस्किया, ऑलवेज से यूनिवर्सिटी ऑफ तुषा because it's Italian university, so Italian pronunciation is Tuscia. So in this video, we're going to talk about the summary of the scholarship ranking of this university requirement. What is the minimum requirement to apply for the scholarship, eligibility criteria, what documents do you need to apply for the scholarship, and how to apply. So if you have already subscribed my channel, then thank you so much for subscribing my channel. If you didn't subscribe my channel, then I request you to please like and subscribe my channel, watch all my videos, because this channel, on this platform, I always talk about the universities, admissions, scholarship, eligibility criteria, and what documents do you need to apply for the specific scholarship. So I request you to please like and subscribe my channel and please share it to all the students कि उनके लिए golden opportunity है कि वो सारी information scholarship से related ले सकें. So first talk about the summary of the scholarship. Host country Italy and the host university is University of Tuscia, Italy, and the scholarship offered by University of Tuscia and the Italian government funded scholarship जिसमें आपको 100% funded scholarship मिल जाता है. And fully funded scholarship है degree level undergraduate, postgraduate, PhD degree in different fields. So if you apply for undergraduate program, master or PhD program, then you can apply for this scholarship. University of Tuscia, it's a public university, is located in Viterbo, Italy, and founded in 1979. So it's not an old university, but you know the acceptance rate for this university is 80%. यूजुअली कहा जाता है 80 to 90% इस यूनिवर्सिटी का जो है एक्सेप्टेंस रेट है. तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें. यहाँ पे मिनिमम CGPA के जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 2.5. सो इट्स यू नो दैट इफ़ योर CGPA is 2.5 or more than 2.5, then you can apply for this university and the acceptance rate is 80%. मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का. तो अगर आप देखें अपने डिपार्टमेंट, अपने से रिलेटेड डिपार्टमेंट देखिएगा, अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे है देन इस यूनिवर्सिटी को मिस ना कीजिए. नाउ टॉक अबाउट द रैंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. अच्छा, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है. तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आप जा रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो आप लकी हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है. तो उसमें अगर आपका CGPA बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे लाइक 3.7 3.8 है, तो आप अपनी रैंकिंग देखें. लेकिन अगर आपका CGPA अच्छा नहीं है ज़्यादा, तो आप रैंकिंग को कंसीडर ना कीजिए. द मेन थिंग इज़ टू गेट आउट ऑफ योर कंट्री. इफ़ यू गेट आउट योर कंट्री देन यू वुड हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी फ्यूचर में, एक दफ़ा आप अपने कंट्री से बाहर निकल जाएं. सो ओवरऑल वर्ल्ड में जिसका रैंक है दैट इज़ 1499, यूरोप में 534, इटली में द रैंक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ 50 एंड द लाजियो रीजन जो कि इटली का एक रीजन है, वहाँ पे इसका जो रैंक है दैट इज़ 4th. Now talk about the documents, required document. First, the most important thing is, okay, you have to fill the application form, your educational record, just like your educational diploma, your educational transcript, English proficiency certificate. अगर आपके पास IELTS या TOEFL है, then आप IELTS या TOEFL अटैच कर दें. रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए. अगर आपके पास IELTS या TOEFL नहीं है, सॉरी, देन यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा. Then statement of purpose, that is also called motivational letter, that is the one of the most important document to apply for the scholarship. Your CV is also important. So मैं अपनी हर वीडियोस में अब बताती हूँ कि your motivational letter and your CV, these two documents are very important. CV होता है कि जो आपको रिप्रेजेंट करता है in front of the committee कि आपकी क्या स्टडीज़ हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है. लेकिन जो आपका मोटिवेशनल लेटर है ये आपकी राइटिंग स्किल को एक्सप्लोर करता है या आपकी राइटिंग स्किल को शो करता है कि आपकी राइटिंग स्किल क्या है. क्योंकि जो कमेटी के लोग बैठे होते हैं उन्हें नहीं पता कि आप कौन हैं, आपका CGPA क्या है. आप वो तो चलो देख लेते हैं आपका CGPA, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपकी राइटिंग स्किल क्या है, आपकी रीडिंग स्किल क्या है. अपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने से पहले एक दफ़ा वो चेक करना चाहते हैं कि अगर हम आपको यूनिवर्सिटी में रखते हैं
तो आप अब कैसे यानी कि कैसे अपने आप को वहाँ पे शो करेंगे, तो उसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ योर मोटिवेशनल लेटर, जो कि शो करता है कि हाँ आपके अंदर एक राइटिंग स्किल है और आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से किस तरीके से मैच कर सकते हैं। मोटिवेशनल लेटर जो होता है वो एक्चुअली इसी पर्पस के लिए होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्शन होती है, वो समझती हैं कि उनकी रिजेक्शन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर CGPA, बट उनकी रिजेक्शन होती है मेनली उनके मोटिवेशनल लेटर पे। उनके मोटिवेशनल लेटर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है देन यू विल गेट द रिजेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। एंड योर पासपोर्ट, पासपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर ID कार्ड। एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि हर यूनिवर्सिटी की और हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देती हूँ कि हम मेरी अपनी जो टीम है हम लोग भी मोटिवेशनल लेटर और CV की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने मोटिवेशनल लेटर और CV की सर्विसेज लेनी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू कैन सॉरी एक्चुअली मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, और यू कैन ऑल्सो सेंड मी एन ईमेल, तो मैं आपको इसके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो नाउ गेट इन द वेबसाइट टू चेक हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट डाउन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ तुषा। यहाँ पे होम पेज यूनिवर्सिटी ऑफ तुषा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो फर्स्ट हम लोगों ने किया है होम पेज, क्लिक ऑन होम पेज। लेट्स चेक द फर्स्ट साइकिल डिग्री दैट इज बैचलर डिग्री, सेकंड साइकिल डिग्री दैट इज योर मास्टर डिग्री। फाइंड आउट द बैचलर डिग्री। Social sciences area, business economics, communication technologies and digital culture, political science and international relation, sport, wellness and exercise in natural environments। ये कोर्स आपके दिए गए हैं। साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एरिया, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, डिज़ाइन ऑफ सूटेबल इंडस्ट्री एंड टेरिटरी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, landscape, environmental planning and design, seed production and nursery management, environmental biological science, food and wine technology, forestry and environmental sciences। अच्छा, ये आप चेक कर लीजिएगा। ह्यूमन साइंस एरिया में आ जाएगा एजुकेशनल साइंसेज, हेरिटेज स्टडीज़, ह्यूमन साइंसेज एंड मॉडर्न लैंग्वेज एंड कल्चर, ये आ जाएगा इनके बैचलर में। बैचलर में ये प्रोग्राम है। लेट्स चेक द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। इसमें मैनेजमेंट फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग आ गया, सर्कुलर इकोनॉमी आ गया, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन फॉर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन आ गया, डिजिटल इंफॉर्मेशन आ गया। लेट्स चेक मैनेजमेंट फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप कोर्स ओपन करेंगे वहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, नॉट enrolled yet and already enrolled। अगर आप ऑलरेडी enrolled हैं then click on this one। if you wanna enroll in this university then आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। हेड क्वार्टर विथर्ब हो जाएगा, डिपार्टमेंट बता दें इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, सोसाइटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज इटालियन होगी। ये जो कोर्स है ये इटालियन लैंग्वेज में है। फाइंड आउट मोर, फाइंड आउट मोर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे एक फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सिलेबस हैं, सेकंड में कौन कौन से कोर्सेज हैं, सेकंड ईयर में कौन से कोर्सेज हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग बैक पे जाते हैं। चेक द सर्कुलर इकोनॉमी इफ़ इट्स इन इंग्लिश। दिस वन इज़ इन इंग्लिश। अगर आपका ये है कोर्स तो आप ओरल इंटरव्यू पे क्लिक करेंगे। इस यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म उस तरीके से फिल नहीं करना जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। this you know the application form in this university is totally different। first you have to clear the interview, admission interview। first you have to book the online interview। अगर आपका वो clear हो जाता है then the next step is pre enrollment। so interview is the first step। interview के लिए आपने उस पर क्लिक किया, then आपने इस फॉर्म को फिल करना है। your email, your first name, your family name, surname, your gender, date of birth, place of birth, email, nationality, योर बैचलर डिग्री टाइटल, आपने ये फॉर्म फिल कर देना है। योर CGPA, और जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे आपने अपलोड अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, अपलोड योर बैचलर डिग्री, योर ट्रांसक्रिप्ट और योर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। बस आपको ये चाहिए होगा। देन क्लिक ऑन सबमिट। आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो फिल हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू टाइम आएगा जिसमें आपने जो है वो अपना क्या कहते हैं डेट वगैरह सिलेक्ट करनी होगी, या यूनिवर्सिटी आपको खुद ईमेल कर देगी। ये सर्कुलर इकोनॉमी का था, हम लोगों ने किया। हर डिपार्टमेंट का यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम डिजिटल इंफॉर्मेशन का चेक करते हैं।
ये पेज अभी ओपन नहीं हो रहा, हैज सम प्रॉब्लम. मार्केटिंग एंड क्वालिटी, just like this one is oral interview. अगर यहाँ पे oral interview का जो है लिंक ओपन नहीं हो रहा, देन एक और पेज है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उस पेज पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपने अपना इंटरव्यू जो है वो बुक कर लेना है. मैं आपको चेक करके बताती हूँ. दिस पेज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो यहाँ पे आएंगे, देखें हाउ टू इनरोल. First, check the language requirement. Italian language skills are mandatory for enrolling in the course taught in Italian. अगर आपने Italian language में करना है, then you must have Italian language skill. Student who hold an Italian high school diploma and student who possess a B2 level English proficiency certificate, then they can apply in the Italian course. अगर आपका इंग्लिश में है, देन यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट. हाउ टू बुक एन एंट्री टेस्ट ओनली फॉर बैचलर डिग्री एंड सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री प्रोग्राम. अच्छा, ये उनके लिए है. प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन द बैचलर डिग्री कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू टेक एन एंट्री टेस्ट. आपने यहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक ऑन हियर, एंट्रेंस टेस्ट आ गया यहाँ पे. द एंट्री टेस्ट इज एन एग्जाम दैट फ्रेशमैन मस्ट टेक और फाइनलाइज द इनरोलमेंट इन द डिग्री प्रोग्राम. इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव and does not preclude enrollment in the study program, but you have to take it. अच्छा, book an online appointment. Click on book. Then you have to fill this form. Your last name, your first name, your email address, your phone number, your city, your school or university name. This one is for bachelor's program. अच्छा, if you wanna apply for suppose biotechnology, then biotechnology. Preferable interview date, यहाँ पे देखें आपके पास आ गया. यहाँ से आपने डेट वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है. देन चेक दिस बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन सबमिट. इस तरीके से आपका जो है ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा. आपकी इंटरव्यू जो है वो बुक हो जाएगा. अब हम बैक पे जाते हैं और बैक पे जाते हैं. हाउ टू बुक एन एडमिशन इंटरव्यू ओनली फॉर मास्टर डिग्री. अब आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है, तो आपने इधर जाना है. मास्टर डिग्री कोर्स पेज, सोशल साइंसेज एरिया जिसका मैंने आपको बता दिया था, तो वहाँ से आपने अपना जो है वो बुक कर लेना है. अपने आपका इंटरव्यू जो है वो बुक हो जाएगा यहाँ पे. अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं. ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. कोर्स कैटालॉग हो गया, कोर्सेज थॉट इन इंग्लिश. यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि कौन कौन से कोर्सेज इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं. सर्कुलर इकोनॉमी कोर्स इज इन इंग्लिश. दिस वन इज़ आल्सो इन इंग्लिश. यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में करवाई जा रही हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर लीजिएगा. आप देखिएगा कि इस यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करने का मेथड है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. फर्स्ट यू हैव टू टेक द इंटरव्यू. आफ्टर getting successful into the interview, then the next step is pre-enrollment. Pre-enrollment के लिए ये फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी का. फर्स्ट अगर आप सपोज आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, देन नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ओपन दिस लिंक, देन यू हैव टू फिल द प्री इनरोलमेंट फॉर्म. ये भी मैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कैसे करना है. तो दिस इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी. यहाँ पे अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज द वे टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.